तो या तो आप मतलब जनरलिस्ट बन जाओ इतने अच्छे यू कैन डू एनीथिंग, या तो आप मास्टर बन जाओ इतने अच्छे कि इन दैट फील्ड नोबडी कैन कैच। आई गेस DSA इज इम्पोर्टेंट टू सम एक्सटेंट। DSA मतलब कि तुम डेटा सक्सेस के बारे में जान लो। मेरे हिसाब से मतलब ये है, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम पूरे दिन पर कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। सी इफ यू आर इन लेट्स से you are doing something which has more demand and less supply, right? You will obviously earn more or do better. As an engineer, Web3, blockchain, machine learning के पीछे नहीं भागना चाहिए। फाउंडेशंस पहले अपना बना लो। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट के लिए आई डोंट थिंक कि ब्लॉग उतना बेनिफिशियल होगा, उससे बेटर है कि वो प्रोजेक्ट्स बनाए। फर्स्ट स्टेप 1 शुड बी टू लर्न न्यू थिंग्स, स्टेप 2 शुड बी टू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स, गो टू हैकाथॉन्स। See, either it can be showing something you did or either it can be also about the error. यार मेरे प्रोजेक्ट में ये एरर आया, मेरे को समझ नहीं आया क्या करूँ, तो डाल दिया। And that does well basically. That does well. It doesn't matter कि तुम्हें कितना आता है, ये ज़्यादा मैटर करता है तुम जितने बग सॉल्व कर सकते हो। कि इनिशियली वी डू आस्क देम टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट ट्रैप कहाँ होते हैं? Welcome यार guys, how are you first of all? Great. बढ़िया भाई। तो यार स्टार्ट करते हैं with a round of intros. पहले अमन, then भव्या, then ईशर. So hello guys, I am Aman and I am in my 4th year of college अभी, महाराजा अग्रसेन same college, और I am working at Diet अभी as an engineer. Yeah, like similar to Aman, we are in same college. He is a senior of mine. I am in my 3rd year. Right now, except in college, I am just passing my time building some projects as well as working as an ML intern at a startup. Yeah, same thing. Like my name is Yushar and we are from the same college, right? And we are working as an engineer at some places and building some stuff, hoping to build our own company in future. But that's it. यार guys, my goal from this video is कि कोई भी इस वीडियो को देख रहा है ना, तो उसको पता लगना चाहिए कॉलेज में एक्चुअली करना क्या है. You have to build projects, do internships, off campus opportunities होती हैं, काफ़ी कुछ होता है. And आप तीनों इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपने लिए. तो मेरा मेन गोल यही है इस वीडियो से कि कोई इस वीडियो को देखता है तो गेट द गाइडेंस कि यार उन्हें क्या करना है अपनी कॉलेज लाइफ में, राइट? तो व्हाट डू वी स्टार्ट विद योर जर्नी भव्या, कि आपको आपकी अपॉर्चुनिटी कैसे मिली ऑफ कैंपस? See, we have heard many things, like many people say contribute to open source. It's good. But in recent times, we have also seen the Indian students have many mistakes and had made many mistakes in open source. They just contribute to the readmes at their name and all. That's not contribution, right? But moreover, yeah, contributing to open source is a thing, but I have not done that. The major thing that helped for me is that writing blogs. I like displayed my journey online for last year for like around 20 weeks. I showed what I am building, what I am doing, and through a blog post only, I got an opportunity to work at a place. बट ये सब कब स्टार्ट करना चाहिए, मतलब ब्लॉग वगैरह लिखना? यार मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, आई फील कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है अभी. Yeah, see, like I heard this proverb somewhere कि best time to do something was 20 years ago. The second best time is now, right? तो वो कुछ तो आता ही होगा. VS Code खोलने आता है ना, वही लिखते. बहुत सारे ऐसे लोग इसको VS Code खोलने पे नहीं आता, right? Just write for you कि मेरे को अगर ये पहले मिलता ये ब्लॉग तो मैं अच्छे से सीख रहा होता. तो राइट फॉर योरसेल्फ. I wouldn't like completely agree to blogging वाला part, क्योंकि the thing is कि देखो जैसे कहा तुमने, when you start learning something, again you can write blogs on it, it will give you more clarity on that topic. At the same time तुम और नए topics को सीख सकते हो. Yeah. मेरे लिए what would have worked better कि मैं initially projects बनाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा. प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज बेस्ट वे टू डू इट हैकाथॉन्स में जाओ, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्किंग कि प्रोजेक्ट कौन सा बना लूँ, मेरे को कोई प्रोजेक्ट आइडिया बता दो. देयर आर 2 ways टू डू इट, इधर आस्क ChatGPT बेस्ट, ठीक है. दूसरा है हैकाथॉन्स में जाओ, टीम लेकर जाओगे, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट्स आइडिया आ जाएंगे. तो वो कर लो यार, ज़्यादा बेटर है. हाँ, वो तो part है यार. चार Building is the engineering part. के लोग बैठेंगे, Building idea is the आएगा. part of it anyway. See, अगर तुम blog post ही बना रहे हो, either they can be very vague and theoretical blog post, or either they can be very technical blog post with some code subside. Like maybe अगर if it's talking about ML, right? So it can be related to a collab notebook that you built, or maybe a model that you fine tune or something like that. जैसे कि अमन ने कल एक मॉडल पहली बार फाइन ट्यून करने का ट्राई करा, तो similarly he followed a blog post maybe for that.
it's a similar way. You never know कि what works for you. And kept us awake for the whole night कि bro please help कर दे. बट यार डू दोज बोथ हेल्प? मतलब भव्या ने बोला कि इन डेप्थ भी लिख सकते हो ब्लॉग आप और ऊपर से भी लिख सकते हो, तो कुछ भाई इसकी मैं बताऊँ मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है and I got a lot of good things about it. उसकी टाइटल है द क्यूरियस केस ऑफ HTML फॉर्म्स, जो कि मेरा इंस्पिरेशन था क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन जो मूवी है. Okay, हाँ, उसमें मैंने मूवी के स्क्रिप्ट के इंस्पिरेशन लेके ब्लॉग पोस्ट लिखा. इंटरेस्टिंग. तो अपना अपना स्टाइल है भाई. अब कुछ किसी के लिए वर्क कर सकता है, समथिंग माइट वर्क फॉर समवन. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए आई डोंट थिंक कि ब्लॉग उतना बेनिफिशियल होगा. उससे बेटर है कि वो प्रोजेक्ट्स बनाए. We also Yeah. did in second and third year, right? Yeah. First step 1 should be to learn new things. Step 2 should be to start making projects, go to hackathons. उसके बाद once you get there, तो you can start writing blogs. अपने hackathon के experience के बारे में blog लिख दो. तुमने क्या बनाया उसके बारे में एक blog लिख दो. तो ये कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है ये. See, blogs are not just for your own thing, it's also for your marketing as well. Right. वो आपको market भी कर रहे हैं. Right. In the end, I think like, you just need to be vocal about yourself. खुद को बेचो, कैसे भी बेचो. The more you start posting about yourself on social media, कि अच्छा मैंने ये किया, मैंने ये बनाया. The more visibility will you Yeah. And I also want to improve upon that for me as well. Like personally, जैसे कि मैं Twitter खोलता हूँ, there are few folks who don't know more than me, but they are captivating to much wider audience than me. Can you take some names? I don't remember. even like my blog, But, I got yeah. from Twitter only. Yeah. मैंने एक tweet पे respond किया, and then I DM'd the person who posted that tweet. He referred me to like that. So, yeah. interview process शुरू हो गई. Like showing your stuff that you're working on today. I found either it can be showing something you did, or either it can be also about the error. यार मेरे प्रोजेक्ट में ये एरर आया, मेरे समझ नहीं आया क्या करूँ, तो डाल दिया. And that does well basically. That does well. See, जितना मैंने अभी इंटर्नशिप्स में भी देख रहा हूँ, जैसे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, it doesn't matter कि तुम्हें कितना आता है, ये ज़्यादा मैटर करता है तुम जितने बग सॉल्व कर सकते हो, राइट? ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें सारी एल्गोरिथम पता है. Those Zira tickets do matter. बट स्टिल यार पोस्टिंग ऑनलाइन कम्स सेकंड. Yes. पहले है सीखना. Yeah, definitely. Where we You need struggle, to have stuff. where 90% of students struggle is about learning the thing itself. वो फंस जाते हैं कि यार मेरे को 1 क्वेश्चन से लेके 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है. ये इन्होंने मेरे को शीट दी थी इन भैया ने, मुझे ये पूरी करनी है. वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं. ना दे बिल्ड प्रोजेक्ट्स, ना तो वो हैकाथॉन्स में जाते हैं, ना कुछ भी नहीं करते. जस्ट फॉलो बुक. तो देखो, there are a few people, मतलब फर्स्ट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं and there is one more person जिसको हम लोग मिलकर गाइड कर रहे हैं. तो what we follow is कि initially we do ask them to solve questions, but ट्रैप कहाँ होते हैं? मल्टीपल जगह. पहले तो वो गिव अप कर देते हैं बीच में. तो उस टाइम पे इफ़ दे हैव समवन जो कि उनको पोक कर रहा है कि नहीं तुमको कंटिन्यू करना, काम करना है, तो इट हेल्प्स देम. ठीक है, पहला तो वो. सेकेंडली वो एक फिक्स टाइम के लिए उनको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो पूरा टाइम क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहेंगे अपना 4 साल. मेरे हिसाब से मतलब आई एम मोर टुवर्ड्स कि एज एन इंजीनियर यू नीड टू बिल्ड स्टफ, एंड आई पर्सनली डू दैट. तो सेम चीज़ को मैं प्रीच भी करता हूँ. तो जब तुम एक फिक्स टाइम के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारा एक एबिलिटी डेवलप हो गया है कि यू आर एबल टू गेट द बेसिक्स डाउन, तो यू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स, यू स्टार्ट लर्निंग द डेवलपमेंट साइड ऑफ इट. तो वो ट्रैप से तुम आराम से निकल जाओगे इफ़ यू हैव लाइक फिक्स्ड करिकुलम टू फॉलो. बट एट द सेम टाइम एज अ स्टूडेंट यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है दोनों, कि तुमको एक्सप्लोर तो करना है बट पहले अपना बेसिक्स डाउन कर दो ताकि यू हैव योर फंडामेंटल्स, और फिर उसके ऊपर तुम एक्सप्लोर करोगे तो तुमको ज़्यादा हेल्प करेगा. अगर तुम ऐसे 4 दिन रिएक्ट पढ़ लिए, 5 दिन फ्लटर कर लिए, 6 दिन मशीन लर्निंग कर लिए, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. एक मेरे हिसाब से देखो, अब अगेन इट इज़ वेरी ओपिनियनेटेड. ठीक है, सबका अलग ओपिनियन होगा. मेरे हिसाब से होना चाहिए ये जो मेरे लिए काम किया है, एंड आई हैव सीन इट वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल आल्सो, कि एक फुल स्टैक एप्लीकेशन मिनिमम तुमको आना चाहिए बनाने एज एन इंजीनियर. Define full stack. अब अगेन आई कैन गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट. Exactly. My point. वही तो एक बेसिक Node.js एप्लीकेशन जहाँ पे तुम राउट्स डिफाइन कर रहे हो, बेसिक CRUD ऑपरेशन कर पा रहे हो. ठीक है, एंड उसके ऊपर तुम एक फ्रंट एंड बिल्ड कर पा रहे हो. तो दैट इज द बेसिक पॉइंट आई वुड वांट कि एनी इंजीनियर
को आना चाहिए। अब मैं भी अगर कर रहा हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आई एम अ मोबाइल गाय, मेरे को मोबाइल में मेरा सारा एक्सपीरियंस रहा है, बट आई कैन डू इट, तो मैं अपना पर्सनल प्रोजेक्ट तो बना सकता हूँ ना। तो मेरे हिसाब से जब उतना मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, तो मैं किसी और चीज़ पे जब स्विच करूंगा तो मेरे लिए काफ़ी आसान होगा स्विच करना। तो दैट इज़ माई ओपिनियन। अगेन अलग अलग लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है। सेम है, सी फुल लर्निंग नो, मेरा वही है कि ब्रो यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ यू नो प्रोजेक्ट्स, राइट? लेट्स से I started learning, right? So I did not go into web or mobile anything else. I was doing code courses. ठीक है, तो मैं बैठ के मस्त code course कर रहा था। So my brother is also an engineer, right? So he saw me and he literally slapped me, मतलब ऐसे कि bro तू क्या कर रहा है? Code courses is very good, but you won't build. Try building something first. And I took on JavaScript, right? और चेंज की बात होती है ना, तो मैं फर्स्ट डे भी मैं JS सीख रहा था। It's been around 2 years. I'm still doing JS. I'm not doing anything else about it. Right? But I have this confidence कि in JavaScript ecosystem there is nothing that I cannot understand, right? So I have that confidence. तो या तो आप मतलब जनरलिस्ट बन जाओ इतने अच्छे you can do anything, या तो आप मास्टर बन जाओ इतने अच्छे कि in that field nobody can catch you. अगेन तूने सही कहा बिल्कुल। जो मैंने एक्सप्लोरेशन वाला, सॉरी कट कर, तो एक्सप्लोरेशन वाला जो मैंने बात बोला था ना, इट्स फॉर दोज जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट? अगर तुमको नहीं, वंस आफ्टर डूइंग दैट फुल स्टैक वाला थिंग एंड यू स्टार्ट विनिंग हैकाथॉन्स, तो तुमको एक्सप्लोर करने का मन नहीं करेगा। तुम बोलोगे कि नहीं मेरे को ये सूट कर गया, मेरे को मजा आ रहा है, तो आई वुड आई वांट टू चेंज, तो तुम उसमें और डीप जा सकते हो। अगर उतना करने के बाद तुझे फील हो रहा है कि नहीं आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, आई वांट टू चेंज माय स्टैक, so you should change. And also it's very different thing that I have seen कि if you follow someone great in any field, you will get inspired a lot. मतलब जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, राइट? तो आपको क्रिकेट की इंस्पिरेशन चाहिए, आप सीखते हो या सीखना है, तो आप जाके गली के बच्चों को नहीं देखोगे, you will see विराट कोहली और तेंदुलकर, राइट? तो वैसे if you see great engineers building great things, you will get inspired कि ब्रो ये कर रहा है, इसने भी तो जीरो से स्टार्ट किया होगा ना, कैसे किया? उसके तुम पुराने प्रोजेक्ट्स देखो, पुराने कमिट्स देखो क्या कर रहा है, एंड सी योरसेल्फ किया, अरे मैं भी तो वही कर रहा हूँ, तो देयर आर चांसेस कि आई कैन बी बेटर। दैट्स इट। Yeah, like also there is a thing, जैसे कि you started with DSA, right? In Indian scenario, that's what I feel like that's the only thing people talk about. But I feel like it's a bit vague. I guess DSA is important to some extent. मतलब एक हद तक important है। ये नहीं कि तुम्हें दिन भर DSA करना है। DSA मतलब कि तुम डेटा सक्सेस के बारे में जान लो। मेरे हिसाब से मतलब ये है। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम पूरे दिन भर कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है? It's just maybe some effect that you get after winning something. What I don't know. That's the point there. But my point is, see, at the तुम्हें कहीं पे भी काम करना तुम्हें बनाना ही है, तो मुझे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। Correct. Right. So at the तुम्हें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ही। Why the reason why I'm in favor of कि learning DSA is important, क्योंकि Google Maps को उठा लो यार, VS कोड उठा ले तो बैकस्पेस दबा रहा है, क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? नहीं वो तो फिर भी तुम मतलब उसको सोचने में, प्रोसेस करने में बच्चों को टाइम लगेगा। बट इफ यू सी गूगल मैप्स में पूरे ग्राफ्स यूज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ठीक है? तो अगर फंडामेंटली तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आई नो एज एन इंजीनियर तुम लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में सीख सकते हो, बट अगेन एक बार फंडामेंटल्स डाउन कर लो। बट वो वाले रैट रेस में मत फंसो जहाँ तुम कोड फोर्सेस और ये सब में बिजी हो गए। अगर तुम्हें पसंद है, if you like the thrill of solving a programming, इंडिया में किसको होता है? हाँ सर, किसको होता है इंडिया में? किसी को नहीं होता यार, वो भी है कि नहीं, बहुत कम परसेंट लोग, बहुत कम परसेंट। ये also it's more about कि false marketing है। False marketing, exactly। IIT जी का ना एक कोडिंग का वर्जन है। एक बहुत सही बात ब्रो, ये तभी तो कोचिंग खोल रखे है ना, वरना कोचिंग नहीं खोल रहे। मतलब मैं तो बिल्कुल बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे कि ईशर भी अपने फेवरेट इंजीनियर्स के नाम ले रहा था। आज के में फिट्स एनी इंडियन इंजीनियर आउट ऑफ इट। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, मतलब इंजीनियर्स आर लाइक सुपरस्टार। हाँ है, देयर इज अ पर्सन लाइक प्राइमेजन, राइट? यूट्यूब पे है प्राइमेजन, आई लव दैट गाय। देयर इज वन मोर पर्सन, नो थियो इज स्टिल लाइक, थियो आई एडमायर एज अ कंटेंट क्रिएटर, बट मैंने उसका वर्क नहीं देखा, तो आई डोंट नो। मेरे लिए तो जिनको मैं एडमायर करता हूँ वो मोस्टली मेरे वर्कप्लेस पे। एग्जैक्टली, वो तो है हमारे साथ लाइक दे आर रियली गुड इंजीनियर्स एंड आई हैव सीन देम वर्किंग। तो व्हाई डू यू हैव टू derive your whole inspiration from a person जिसको तुम बस इंटरनेट पे देख रहे हो? नहीं वो तो ये है ना कि फर्स्ट ईयर वाले को काम मिलेगा, वो काम मिलेगा, राइट? फर्स्ट ईयर वाले तो ऑनलाइन देखते हो, करेक्ट? हाँ मतलब ठीक है, they don't have to be inspired, they can get inspired from their college। अच्छा, what's a good time to do an internship? जब फर्स्ट ईयर आ जाए, राइट?
see there are two factors that Yes, tell me. एक अच्छा फैक्टर है, एक बुरा फैक्टर है। अच्छा फैक्टर है कि जब तेरे को करने का मन करे स्किल से कर ले। दूसरा फैक्टर है जब तेरे को पैसे की जरूरत पड़े। क्योंकि कॉलेज में हो यार, लोग घूम रहे हैं, आपको भी पैसे चाहिए। मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज आई वांटेड टू मेक मनी। नाउ फिर करने का मतलब ब्रो ये तो सही चीज है। I still want to make money. Exactly, I still want to make money obviously। तो अगर मैं उसी पॉइंट से सोचूं मुझे भी इंटर्नशिप कर लेना चाहिए तो मैं इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। बट मेरे पास स्किल्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो इंटर्नशिप करते रहते हैं कि भाई इन्होंने इंटर्नशिप करना है, Balance। आता तो मिलता कुछ नहीं है। तभी तो मैंने दोनों पॉइंट्स बोले। बट यार फर्स्ट ईयर में क्या स्किल्स आएंगी? हो जाते हैं। Exactly, but पैसे का कमी तो फर्स्ट ईयर से रहता है। हाँ। नहीं बट एक ये चीज भी है ना, देयर आर सम फोक्स, मतलब जिनका थिंकिंग ऐसा होता है कि हम ये डिजर्व नहीं करते इंटर्नशिप, हाँ, हमें हाँ। पहले और मेहनत करनी है, हम अभी डिजर्व नहीं करते, हमें और मेहनत करनी है। तो वो थोड़ा सिनेरियो मत रखो। पब्लिक ना, या तो उनको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब लोग अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे कि जो तुम काम कर रहे हो वो अच्छा है, इट इज गुड एनफ, तो वो कॉन्फिडेंस वहां से आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इज अ वेरी बिग फैक्टर, क्योंकि कॉन्फिडेंस वैलिडेशन से आता है भाई। हाँ। या मेरे को तो भाई जितना वैलिडेशन मिला है वो इंटरनल वैलिडेशन, इंटरनल सेल्फ वो बस फिलोसॉफिकल की अच्छी लगती है, बट जब तक यू डोंट गेट एक्सेप्टेड समवेयर राइट, यू वोंट बी नो कि हाँ ठीक है। ये मेरे को चीज तो लोगों ने बोला कि तू अच्छा काम कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि हाँ, अच्छा लगता काम है, कर रहा हाँ। हूँ। हमें भी पता था, मन भी है। So what are your experiences of doing your first internship, Ishar, let's say? पहले My internship first में, internship. हाँ. So, see, I started applying, right? So, I did apply at like 150 places. And not the button wala apply. There's no cold emails and DMs and whatever that shit. ये मेहनत है। After 150, I got 5 replies. ठीक है, 5 रिप्लाई हुए, उसमें से 3 के साथ इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ। फर्स्ट इंटरव्यू, guy comes in, asked me कि reverse an array. 90 minutes, I could not reverse an array. ठीक है, 90 minutes. Now I can do it in like 80 minutes. But back then 90 minutes I could not reverse an array. Obviously, नहीं होगा। दूसरी इंटरव्यू में बंदा आया, he saw my project. He just told me, what did you use? I told him JavaScript. He was like, no, I want Angular. Call cut. 2 minutes. Call cut. Third इंटरव्यू वाला, ब्रो तू कर लेगा? मैंने बोला हाँ। ये आता है? हाँ। ठीक है, 1 जून से आ जाइए। एंड दैट वाज ए नो कोड इंटर्नशिप, मतलब वहाँ पे मुझे कोडिंग नहीं करनी थी। एंड सारे इंडियन कंपनीज थे या फिर बाहर के भी थे इसमें? Honestly, I don't know, मतलब कुछ बाहर रजिस्टर थी बंदे, इंडियन थे, कुछ इंडियन रजिस्टर बाहर। But the first internship guy was Indian and he wanted to build something, right? So he wanted to build an MVP. So he did not want to invest in developers, but he wanted some college kids की नो कोड पे बना दे। तो वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें सीखी कि यार नो कोड प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस क्या है, एंड इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग यू नीड प्रोग्रामिंग, राइट? दैट वाज माय लर्निंग फ्रॉम देयर कि भाई तेरे को प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए। देन आई जस्ट हेवीली इन्वेस्टेड इन माय प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड बैक देन आफ्टर दैट जस्ट थिंग्स कीप कमिंग। So for your someone in their first year, what's a good नॉलेज लेवल दे शुड बी एट? क्या क्या उनको आना चाहिए आइडियल सिनेरियो में? अगर आप तीनों का एक्सपीरियंस पूछूं मैं तो आई गेस ये थोड़ा यूट्यूबर्स ने फ्लॉट करा हुआ है कि हमने ये करा तुम भी यही करो। आई गेस वो मत करो, अपनी अपनी पर्सनल जर्नी होती है। जैसे अमन ने बताया कि अटेंड हैकाथॉन्स, राइट? जैसे कि इस बार चलो मैं फर्स्ट ईयर में से फॉर एग्जांपल I want to go to an hackathon. I make a team of 4, right? You do back end, you do front end, you do UI design or whatever you want to do, right? आज चलो इस बार हैकाथॉन पे मैं UI डिजाइन कर रहा हूँ, ये बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों कर रहा है, Right. ठीक है? नेक्स्ट हैकाथॉन पे हम सेम टीम है, इस बार हम रोज डिवाइड कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो मे बी जिस काम में मजा आ जाए वो करो यार। एंड थोड़ा सी, अब मैं अगर जैसे कि मैं ML फील्ड से हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो ML में इंटर्नशिप्स होती हैं, इट्स नॉट अबाउट योर बिल्डिंग मॉडल्स, ऐसा नहीं होता है। ये इट्स मोर अबाउट ऑप्स, इट्स मोर अबाउट ऑप्स। इट्स नॉट कि तुम पाइटॉर्च पे बैठे हो, आज हम ये लेयर्स बनाएंगे, ये लेयर हम इनके बेस्ट पैरामीटर्स ढूंढेंगे, ऐसा नहीं होता है। अपना सीन एंड ड्रीम करेंगे वो नहीं होता है कि दे आर जस्ट टेकिंग मॉडल फ्रॉम समवेयर एल्स एंड वो तुम्हें बस बैक एंड के अंदर इंटीग्रेट करना है। दैट्स व्हाट द थिंग इज। यार हम जिस डोमेन में सीख रहे हैं, ML, AI, Web3, फ्रंट एंड बैक एंड, उसका फ़र्क पड़ता है क्या इन द लॉन्ग रन? क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एक स्टूडेंट को? हमें खुद लॉन्ग रन नहीं हुआ अभी तो नहीं, बट जितना भी अब तक हुआ है उसका मेरे पर्सपेक्टिव से पढ़ती हैं। क्या फर्क पड़ता है? पढ़ता है। सी इफ यू आर इन लेट्स से
you are doing something which has more demand and less supply, right? You will obviously earn more or do better. ये market ये तो rule फिर तो है। कौन की तैयारी करो? भाई उतनी skills तो नहीं है। यार but the thing is कि मेरे हिसाब से ना बहुत opinionated हो गया हूँ। हाँ exactly ये opinions वाली चीज़ है। But इसमें point ये है ना कि मेरे हिसाब से सबसे पहले तुमको यार as an engineer Web3, blockchain, हाँ। machine learning के पीछे नहीं भागना चाहिए। Foundations पहले अपना बना लो। Not to attack on हाँ अरे इसने भी पहले वेब किया था भाई। अच्छा हाँ। Good. बट कितना टाइम देना चाहिए उसको? There is no specific time. No specific time. The moment you feel कि तू अपना normal applications बना पा रहा है hackathons में जा करके और तुमको चाहिए machine learning का requirement है, तो मैंने अपने लाइफ में भाई लर्निंग हमेशा रिक्वायरमेंट के बेस पे किया है नीड टू नो बेसिस कि आज ये सीखना पड़ रहा है मेरे को इस काम को अचीव करने के लिए, तो मैं उस चीज को सीख लिया। और इंटर्नशिप पे भी यही होता है। इंटर्नशिप भी यही होता है, मतलब डे 0 पे तुमको कुछ नहीं आ रहा होगा एंड यू विल नीड टू फिगर थिंग्स आउट ऑन द गो। या तो वी लर्न दैट लाइक दैट। तो बेटर है कि तुम देख ये लूप है, क्योंकि मान लो तुमने फुल स्टैक से सीखा, फुल स्टैक हो गया, अब तुम बोलोगे मेरे को मशीन लर्निंग सीखना है, फुल स्टैक सीखने में देखो 6 महीना लगा, फिर से हटेगा तो 6 महीना फिर से लगेगा मशीन लर्निंग सीखने में, तो तुम सीखते ही रहोगे ना फिर। तो बनाना स्टार्ट करो, बनाते बनाते तुमको लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मेरे को, मान लिया जैसे मैं स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट पे काम, तो मैं जीपीटी का एपीआई यूज कर रहा था शुरू में, आई फिगर्ड आउट जीपीटी का एपीआई इज नॉट गुड एनफ, तो मेरे को उसको फाइन ट्यून करना था, तो आई लर्न हाउ टू डू फाइन ट्यूनिंग मैंने सीखा। उसका मेरे को जरा डेटा है, मेरे पास डेटा क्लीन नहीं है, डेटा को क्लीन करना पड़ेगा, डेटा क्लीनिंग मैंने सीखा उसके साथ। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द पूरा का पूरा पार्ट, करेक्ट मैंने ऑन द गो सीखना स्टार्ट किया, वैसे वैसे सीख के फिगर आउट करके चले गया। ज़्यादा बेटर अप्रोच है। गुड पॉइंट। इन्होंने जो भी डिस्कस करा है ना अभी तक, हैकाथॉन्स, ओपन सोर्स, ऑल दिस कम्स फ्रॉम अवेयरनेस, राइट? अब यू आर अ पार्ट ऑफ GDSC, वहाँ से अवेयरनेस आई, तुम अमन को जानते थे, फिर वहाँ से अवेयरनेस आई, बट 90% स्टूडेंट्स आर स्टिल इन देयर ओन बबल। वो ना किसी से बात करते हैं, ना ट्विटर पे हैं, ना लिंक्डइन पे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं हैकाथॉन कब हो रही है, उन्हें पता ही नहीं ओपन सोर्स होता क्या है। तो व्हाट कैन दे डू टू बी मोर? घर पे आकर कोई चम्मच से खाना तो हाँ, खिलाएगा। करेक्ट करेक्ट सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? लेट्स से आपको म्यूजिक पसंद है, ठीक है, म्यूजिक सुनना पसंद है, अब बैठे बैठे म्यूजिक तो बजेगा ना, यू नीड टू गो ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब की भाई क्या चल रहा है, क्या देखो, सर्च करो कि कौन से आर्टिस्ट एल्बम अच्छे। सिंपली अगर आपको अवेयरनेस चाहिए, ट्विटर पे जाओ, सर्च करो वेब टेक्नोलॉजीज या सर्च करो इंजीनियर्स, कुछ हैशटैग सर्च करो, गूगल सर्च करो यार, गूगल सर्च करो। मैंने पता लिटरली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, आई सर्च की ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स ऑफ ऑल टाइम। मैंने ये सर्च किया है, उस पे आता लाइनस टॉरवाल्ड है, ये हाउ टू रिवर्स एन एरे अभी तक। यार देखो, आई कैन रिवर्स एन एरे ऑन पेपर। भाई बहुत सीरियसली इशू है भाई क्या कर रहे हो भाई, फोरग्राउंड वाला को बता ना। नहीं, सो इट्स द थिंग यार, यू नीड टू गेट इन्वॉल्व, ठीक है, बस देखो क्या चल रहा है, अपने आप मिल जाएंगे। मतलब ट्विटर पे जाओगे ना, इफ यू फॉलो वन पर्सन इन टेक, आपके रिकमेंडेशन आएंगे 10 और, देख लो क्या चल रहा है। बट कमिंग बैक That's why you follow me. अमन का एक पॉइंट था कि 6 महीने बाद तुम अपनी फील्ड स्विच करते रहो, हाँ। वो तो बहुत ज्यादा बिग चीज है। नहीं ये मैंने कहा इसने बोला अभी मत नहीं, करो। वही नहीं, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ना करो, ना करो। हाँ वही कह रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग थिंग। एक जैसे कि कॉन्सेप्ट बहुत लोग कहते हैं 10,000 आवर्स वाला थिंग, हाँ राइट, कि तुम एक ही चीज में फोकस करो 10,000 आवर्स, देन यू बिकम लाइक pretty good and great at it, right? हाँ तो तुम बस हर 6 महीने में चेंज कर रहे हो। By the way, do you believe in 10,000 hours things? डिपेंड्स यार क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर आपकी कोई चीज़ है कि इट्स अ स्किल बेस्ड थिंग, राइट? Say for example, he gets तो better at like this cinematography. हाँ, But when This might apply. I've experienced this, like you do get better if you put हाँ. hours, like ये तो है That better is at something natural if you यार, just वो keep होना putting ही in है। घंटे जितने लगाओगे ना। हाँ तो वो तो हुआ ही है। और तो नहीं है। वो जो ग्राफ होता है ना, शुरू में एक्सपोनेंशियल होता है Dunning Kruger वाला। और फिर ऐसे हो जाएगा। हाँ। और ना ऐसे ही चलता है, बट वो जो यहाँ पे जो स्लोप है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि वहाँ पे तुम गिव अप करोगे। नहीं Right. वहाँ पे ना ज्यादा ही, हाँ एग्जैक्टली, वहाँ पे तुम गिव अप करोगे। बहुत सारे लोग उसको ना करते नहीं है, वो वाला पार्ट। वो जो तुम्हारा लर्निंग होगा वो बहुत नीश लर्निंग होता है, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। Yeah, do you believe in this pie-shaped learning, T-shaped learning, हाँ, कि हाँ, know something about यार, everything? उसके बिना काम ही नहीं चलता। मैं भी बोलने ही वाला था कि मैं बहुत प्रीच करता हूँ टी शेप लर्निंग, पाई शेप लर्निंग को। तो मेरे हिसाब से तो यू शुड बी मास्टर ऑफ वन थिंग एक बार बताइए, एक्सप्लोरिंग like what अदर is it? थिंग्स। What is it? What is it actually? क्या चीज? T-shaped learning. अरे तो बेसिकली टी का ऐसे शेप होता है ना, हाँ। ऐसे करके।
यू आर मास्टर ऑफ वन दैट अच्छा, इज ठीक है। एंड जैक ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल। ठीक है। ये तो होता है क्योंकि आप जैसे इंटर्न कर रहे हो राइट, सो नॉर्मली फिर इंटर्निंग एट स्टार्टअप राइट, 3-4 बंदे हैं, अगर किस दिन कोई बंदा छुट्टी पे है ना और काम इंपॉर्टेंट है, आपको उसका करना पड़ेगा। तो आप ऑन द स्पॉट सीखो, आप ऑन द स्पॉट करो, और दैट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट यू गेट राइट, कि भाई तुम क्रंच टाइम में क्लच में तुम कैसे खुद को इम्प्रोवाइज करके कर सकते हो। कभी सीखा है तुमने? हाँ, कैसे सीखा है? तो राइट नाउ आवर टीम इज एट अ इवेंट इन दुबई राइट, साइबरसेक का इवेंट है वहाँ पे। अब उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले किया अपना हमारा डैशबोर्ड डिस्प्ले किया और कुछ टूटा हुआ था। लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं राइट, आई गॉट अ स्लैक मैसेज कि ब्रो ये टूटा हुआ फिक्स कर। तो एट द स्पॉट यू फिक्स दैट थिंग, यू डिप्लॉय एंड मेक श्योर डिप्लॉयमेंट गोज लाइव करेक्ट इन द एंड। तो क्या होता है ना, लेट्स से if you deploy something on AWS right, तो AWS है different regions, तो अब मुझे मिडिल ईस्ट रीजन में डिप्लॉय करना है right? So that also a very good challenge कि भाई तुम रीजन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, और मिडिल ईस्ट में AWS का सर्वर है नहीं right, मिडिल ईस्ट does not have AWS center, I don't know why but they don't, so it's very good skill to you know just ऑन द स्पॉट वाला सीखना, बहुत मजा भी आता है, कहीं कहीं फटती भी है कि भाई ठीक है बट मजा भी आता है। कंट्रोवर्शियल चीज बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बोल यार। अरे जैसे सी फॉर एग्जांपल, जैसे इसने बोला स्टार्टअप वगैरह वाली चीज, राइट, वर्किंग एट अ स्टार्टअप इज प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग एट अ बिग कंपनी। से फॉर एग्जांपल वी नो सम फ्रेंड ABC से फॉर एग्जांपल, राइट, who got into a big company, right, he was there for a month but I didn't build up, करा कुछ नहीं, right, he didn't build anything, right, the task that he got was even done by Ishar only. यार ऐसा भाई मुझे क्यों देखो मैंने कुछ नहीं किया, I have not helped anyone, ठीक है, मेरे को अपना फ्रीडम बहुत अच्छा है, मेरे को I ठीक है, he was helped by XYZ person who is pretty good at skills, but now that person got a job in that big company, getting a pretty hefty package out of it, but no skills actually, to be honest. नहीं, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, क्या हम इंटर्नशिप कहाँ पे करते हैं? लाइक लेट्स से बिग कंपनी, यू मेंशनड कि उस ABC पर्सन के बारे में, या फिर हम करें एट अ स्टार्टअप, क्या बेटर है? अपना अपना यार, मैंने बिग कंपनी में ट्राई किया था, मेरा हो गया था, मैंने 1 हफ्ते बाद छोड़ दिया था। क्यों? मन नहीं लगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो था कि भाई कुछ काम पे मेरे को अगर कुछ पुश भी करवाना है ना, इफ आई वांट टू इवन पुश वन कमांड, रेडिस कमांड, आई नीड टू गो थ्रू 5 पीपल। बट रेज्यूमे में अच्छा नहीं लगता यार वो कि बड़ी कंपनी में काम कर रखा है। ये वो चॉइस डिपेंड करता है देख कौन रहा है, डिपेंड करता है कि वो पीपल प्लीजर हो, देख कौन, क्योंकि नहीं यार, बट अगर इफ योर रेज्यूमे लुक्स गुड, नहीं इफ योर रेज्यूमे लुक्स गुड, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी है, फेसबुक भी है, कोई भी मतलब बड़ी कंपनी है फॉर GitHub एग्जांपल। also matters. मेरे को पसंद आएगा, If I am working in a startup, I think my GitHub will be better. हाँ ऑफ कोर्स, मतलब यार मेरा पॉइंट ये है ना कि तुम स्टार्टअप में काम कर रहे हो, तुम जैसे मेरे को मजा आता है स्टार्टअप में काम करने क्योंकि थ्रिल है, ठीक है, वो थ्रिल मेरे को नहीं, एक रिस्क फैक्टर। I can directly call the founder of the company. सबसे बड़ा मेरे को I wish your founder sees this video. He will. I really wish. अरे अभी तो मैं फाउंडर के साथ PS5 खेल Too chill about it. देखो अपना अपना होता है, some people like startups right, some people like कि मेरे को Microsoft, Google उसमें जाना है, मेरा भी है right, if I get a chance to work at Google, मतलब मैं deny नहीं करूँगा, मना नहीं है, but if you think about learning perspective के हिसाब से, As an intern. as an intern or maybe if you want to gain knowledge pretty quickly, okay, it's like a भाई boot camp है, तुम internship के अंदर गए, startup के अंदर, तो मैं पे चीज़ें बस बोलते जाएंगे, ये कर दो ये कर दो ये कर दो, तुम्हें सब आता नहीं होगा, तुम भी गूगल मारोगे कि कैसे करना है, राइट, एंड वही सेम चीज़ अगर तुम एक बिग कंपनी में करोगे, इट्स अ प्रीटी प्रोसीजर वाइज, अभी तुम्हारा ये टास्क होगा, तुम्हारी ये अब तुम्हें ये रिसोर्स दिया जाएगा एंड ऑल दैट। से फॉर एग्जांपल ऐसे भी डेवलपर्स होते हैं जो ऑनलाइन एक्टिव नहीं है, हम तो थोड़े से दिख जाएंगे, वो नहीं दिखेगा, उसका पर्सनल अकाउंट है ही नहीं, बट दैट गाय इज क्रेजी एज गेमर आईडीज है उसकी। हाँ, मैंने तो उसको बहुत बार बोला कि भाई प्लीज एक अपना अकाउंट बना ले, प्लीज बना ले, मेक अ पर्सनल बैड वो नहीं सुनता, इट्स लाइक नो मेरे को नहीं चाहिए, अपना थोड़ा रेडेड वाला फेज रखना। तो वैसे डेवलपर्स, देयर आर सम डेवलपर्स लाइक दैट राइट, या सो देयर इज आई थिंक वन गाय मैंने देखा था, टेक द एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन क्रिएटर ना, हु नोज दैट पर्सन, नोबडी, बट ये भी मतलब वो एक सिंगल इंसान था, हाँ नोबडी इन द स्टफ दैट ही क्रिएटेड, वहाँ से तुम इंस्पिरेशन, जैसे मैं बोला था सी ग्रेट वर्क्स,
कॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट कि भाई Yeah, I think all four of us are on fitness. बिल्कुल राइट कॉलेज नॉट अबाउट कि तुम इंटर्नशिप लाओ तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है Art है, Girlfriend art के बनाना बारे में एक बात चीज कर होती सकते हैं। है Exactly, और क्या है लाइक अपने फिटनेस में व्हाटएवर इट इज दैट यू वांट टू केयर अबाउट आप बताओ यार, आप like I've seen your reels, but no, like I've seen your reels and you work out like मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने लिफ्टिंग देखी है, मैंने 2 साल में डांस अकेडमी था तो हमारी फिटनेस अलग होती थी, बट मैंने आपके जैसा वर्कआउट मतलब आई हैव नॉट सीन उठा ले, CrossFit उठा ले। thing, right? तो उसके पीछे का इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? यार इट डिपेंड्स व्हाट योर गोल इज, ठीक है. मेरा गोल कभी भी बल्कि होना नहीं था, ठीक है. आई नेवर हैड टू बॉडी बिल्डिंग, मतलब आई वाज नेवर इनटू बिल्डिंग मसल्स, ठीक है. तो आई नेवर लिफ्टेड हैवी. लोग मेरे से पूछते हैं व्हाट डू यू बेंच, मैं कहा यार मैं 5 kg का लगाता हूँ, उसको मैं एक्सप्लोसिवली करता हूँ क्योंकि मेरा गोल ही वो है. आई हैव टू बिकम एक्सप्लोसिव फॉर माई स्पोर्ट. मेरा गोल ही वो है एग्जैक्टली. तो इट इज गोल स्पेसिफिक, मतलब फॉर सम पीपल रनिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, उनका जो गोल है, उनको जो टाइम दे सकते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट आपकी प्रायोरिटीज क्या है एंड हाउ डू यू वांट टू गो फॉरवर्ड, वो चीज़ होती है. इट्स नॉट कि आपने किसी को देख लिया आप कॉपी करना चाहते हो उनको, वो सब नहीं है. अब लोग मेरे को बोलते हैं कि कहाँ से देखते हो आप वर्कआउट्स. यार मैं कुछ कुछ तो खुद ही बनाता हूँ. The thing is कि like earlier I was into like dancing, right? डांसिंग में आप यू डोंट लिफ्ट वेट, बना होता है, बहुत कम लोग करते हैं और डिफिकल्ट होता है कि आप बल्क के साथ अपना बॉडी लाइक कैसे मेंटेन करें. तो लाइक बॉडी वेट होती थी, बट मैं कॉलेज आया, छूट गया, राइट, एंड देन लाइक आई मेट हिम, राइट, सो ही इंस्पायर्ड मी अगेन कि भाई तू जिम जा. तो फिर मैं जा रहा हूँ. सो या गोल थिंग इज नाइस, बट फिटनेस के बारे में बात करना था लाइक नहीं मतलब मैं जिम का जाने का एक और पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा है कि तुम्हें लाइक कि बॉडी होना आई थिंक इट्स अ डिसिप्लिन दैट आल्सो कम्स. डिसिप्लिन तो है ही, बट इट्स आल्सो अबाउट द कॉन्फिडेंस, राइट. यस, राइट, कि तुम्हें किसी बंदे से बात करनी है, किसी लड़की से भी बात करनी है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होता है, राइट. एंड इफ यू हाँ तो सोई गलत टाइम पर है. हाँ सोई गलत टाइम पर है. द बेस्ट थिंग अबाउट जिम इज नो फिट्स जब मैं उठ रहा हूँ भाई देख सुबह 5:30 बजे सुबह 5:30 7 सोया था, कल सोया था सुबह 5:30 6 के आसपास. भाई मैं सोया था 8 बजे, उसके एक दिन पहले सोया था 10 बजे. मैं 4 बजे उठ जाता हूँ. बढ़िया यार, हमारा टाइम काफी कोलाइड कर रहा है. यू आर कॉम्पिटिटर, देख ले. मैं 4 बजे उठता हूँ जब मैं स्विमिंग जाता हूँ, अच्छा. वरना मैं 5 अच्छा, बजे सुबह स्विमिंग नहीं जा रहा है. अभी नहीं जा रहा मैं, पर जून में जाऊंगा. लास्ट ईयर में जैसे जून जुलाई अगस्त तीनों महीने स्विमिंग जा रहा था, तो मैं सुबह 4 बजे उठता था, 4:30 बजे सब स्विमिंग पूल में होता था. क्योंकि एक तो क्या होता है, सुबह जाने का फायदा होता है, बच्चे नहीं होते. तेरे को बड़ी प्रॉब्लम है सबसे. अरे पूल पे अगर जाने के बाद वो बच्चों का अलग, उनका अलग चल रहा होता आधे टाइम. बिल्कुल. मेरे तो अपना लेंस मारनी है, मेरे को करना है. तो बच्चों के टाइम पे वो खेल रहे हैं, वो कूद रहे हैं, वो We talk about some art or movies or music, right? What do you prefer? मतलब आप फ्री हो, चिल कर रहे हो, तो क्या कंज्यूम करते हो? यार फॉर मी म्यूजिक आई डोंट फोकस ऑन लिरिक्स. मेरे को अगर म्यूजिक अच्छा है ना, सिंगर की आवाज अच्छी है, मैं सुन लेता हूँ. अच्छा. दिस आर डिफरेंट. मेरे को लिरिक्स I am on the both ways, right? नहीं, लिरिक्स भी पसंद आते हैं बहुत बार, बट मेजोरिटी टाइम्स पे आई विल लिसन टू म्यूजिक जस्ट फॉर दैट Feel. म्यूजिक एंड दैट उसकी आवाज सिंगर की, दैट्स इट. द मूड बेसिकली, आई चेज दैट मूड, नॉट द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग. ये मेरा कहने का मतलब है, ये मेरा कहने का मतलब. जो सेम मेरे को भी ना, जैसे तो मेरे फ्लैट में इतने लोग हैं और मेरी मोस्टली फ्रेंड सर्कल जो भी है उसमें सब म्यूजिशियंस ही हैं. अच्छा. तो लॉट ऑफ देम प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, लॉट ऑफ देम सिंग. तो जब भी अपन जैम कर रहे होते हैं ना, तो मेरे को एक भी गाने का लिरिक्स याद नहीं होता है, क्योंकि मैं कभी लिरिक्स के लिए सुना ही नहीं हूँ गाने. मेरे को भाई नहीं पता है, मैं मूड के लिए सुनता हूँ. और मैं ऐसे कभी सैड गाना बज गया तो ये लोग बोले नहीं भाई क्या हो गया लाइफ में. अरे कुछ नहीं हुआ यार, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा है गाने में, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के बस. तो ये भाई समझ में नहीं आता भाई. सैड. For me यार म्यूजिक देखो मेरा दोनों है. लाइक मैं एक हार्डकोर लिरिक्स वाला बंदा भी हूँ. मतलब मेरे को रैप होता है ना, लिरिक्स जा रही है, पोर्टेबल्स आ रहे हैं, पीपल लाइक सीधे मौत. आई एंजॉय दैट. हाँ सीधे मौत, राइट, अपने दिल्ली के लौंडे मतलब करेक्ट, सही कर रहे हैं. सीधे मौत तो मैं बहुत बड़ा सीधे मौत होता है. फिर देयर इज वन मोर रैपर कॉल्ड बेला, राइट. बेला इज अ काइंड ऑफ रैपर हु फोकसेस ऑन म्यूजिक. बहुत डिफरेंट है, मतलब उसके लिरिक्स बहुत सिंपल होंगे, बट द वे ही ब्लेंड्स इट म्यूजिक, राइट, क्रेजी. बट फिर आप जब म्यूजिक की बात करो प्रॉपर ट्यूनिंग की, तो जैसे अमन ने मेरे को सुनाया जॉन मेयर, लाइक लव दैट गाय. आई एम अ वेरी बिग जॉन मेयर फैन. फिर ब्रायन एडम्स हो गए, उन सब की जो लाइक द ट्यून्स दे पुट आउट, राइट, क्रेजी.
EDM हमारा EDM वाले बनते हैं दिमित्री में हो जाता है। नहीं जैसे कि see these are very hardcore music folks भाई, ये स्पेशल ईयरफोन्स भी खरीदता है गाना स्पेशल ईयरफोन्स खरीदते हैं गानों के लिए। ठीक है, बट सी मेरे तो इतना म्यूजिक का कोई शौक है नहीं। मैं तो कभी कभी होता है कि मैं पॉडकास्ट सुनते भी वर्कआउट कर लेता हूँ, हाँ मेरे इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड मेरा कभी कभी होता है कि मेरे को कोई गाने सुनने की जरूरत नहीं, मेरे प्लेटों की आवाज़ ही पसंद आ रही है। क्या प्लेटों की आवाज पसंद आ रही है? प्लेट्स की अच्छा जिम में।